Welcome to set 4 of MCQ on Constitution of India. So far we have discussed the 3 sets and this is the 4th set we are going to discuss. The question is, which of the following act empower the discussion of the budget in legislative council? इसमें से कौन सा एक्ट जो है एम्पावर करता है बजट को लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कस करने के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. एंड द करेक्ट आंसर इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. The Indian Council Act 1892 empowered to discuss the budget and address questions to the executives. So it is the Indian Council Act 1892. Next question, which of the following act made a limited and indirect provision for use of the election for filling up some non-official seats both in central and provincial legislative council? Was it Government of India Act 1858, the Indian Council Act 1861, Government of India Act 1909 or the Indian Council Act 1892? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ द इलेक्शन फॉर फिलिंग ऑफ सम नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन सेंट्रल? सो इसमें पहला कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा लिमिटेड पोस्ट के लिए इलेक्शन किया गया? सो करेक्ट आंसर इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. But the word election was not mentioned in the Indian Council Act 1892. So some non-official seats both in central and provincial legislative council were made for limited and indirect provision, but the term election was not used in 1892 Indian Council Act. Next question, which of the following is known as the father of communal electoral? समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर लेजिस्लेशन का डिवीजन किया गया. जिस एरिया में पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे उनको उस पार्टिकुलर के कम्युनिटी के लोग नॉमिनेट करेंगे और जिस एरिया में दूसरे कम्युनिटी के लोग थे वो दूसरे कम्युनिटी को नॉमिनेट करेंगे. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरल. सो हु वाज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरल? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मोरले और रामसे मैकडोनाल्ड? And the correct answer is Minto. Yes, Lord Minto legalized communalism in India in 1909 act by introducing a separate electoral for Muslims. मुस्लिम्स के लिए अलग से एक संसदीय क्षेत्र का निर्माण किया गया. ये 1909 के एक्ट में हुआ और उस समय उस एक्ट को मोरले मिंटो एक्ट के नाम से भी, मिंटो मोरले के नाम से भी जानते हैं. तो जो मिंटो थे ये वायसराय थे और जो मोरले थे वे सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे. तो लॉर्ड मिंटो जो हैं ही इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर द फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड? दोनों क्वेश्चन में थोड़े से डिफरेंस है. ही इज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल एंड ये अवार्ड से रिलेटेड है. फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मोरले और रामसे मैकडोनाल्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज रामसे मैकडोनाल्ड. इन अगस्त 1932, the British Prime Minister announced a separate electoral for minorities and depressed classes. The action was known as
communal award. So this is the communal award, and before this it is communal electoral. Communal electoral is related to 1909 Morley Minto, and communal award is related to Prime Minister, British Prime Minister Ramsay MacDonald. Which act allowed the provincial legislative council to have the non-official majority? Which act allowed the provincial legislative council to have the non-official majority? Council Act 1892, Government of India Act 1935, Government of India Act 1919, or Morley Minto Act 1909? And the correct answer is Morley Minto Act 1909. Government of India Act 1892 increased the number of non-official members in both provincial and central legislative council. Morley Minto Act 1909 allowed the majority of the non-official majority in the provincial council, but retained the official majority in the central legislative council. So those who have not subscribed, please do subscribe, like, comment and share to your near and dear, so that they can also get benefited. Which of the following is the first Indian to join the Viceroy Executive Council? इनमें से कौन ऐसे थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबसे पहले ज्वाइन किए? वाज इट राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा? एंड द करेक्ट आंसर इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. Satyendra Prasad Sinha was the first Indian to join Viceroy Executive Council. Which of the following act introduced a separate electoral for Muslims? So very important question. Council Act 1992, it's a Council Act 1892, Morley Minto Act 1909, Government of India Act 1919, or Government of India Act 1935? And the correct answer is Morley Minto Act 1909. 1909 के मोरले मिंटो एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स वेर एस्टैब्लिश्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following act introduced a separate communal? This is already done. Which of the following act introduced the dual scheme of government diarchy? So in Government of India Act 1935, Government of India Act 1909, Pitt's India Act 1784, Government of India Act 1919, and diarchy was established in India in Government of India Act 1919. 1919 में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जिसमें कुछ रिजर्व से कैटेगरी बना करके रखे गए और कुछ ट्रांसफर्ड कैटेगरी बनाए गए. दो तरह के पावर बनाए गए. पावर को कुछ रिजर्व पावर और कुछ ट्रांसफर्ड पावर. जो रिजर्व पावर थे वो यूनियन के पास रखे गए, और जो ट्रांसफर्ड पावर थे वो प्रिंसली स्टेट्स चाहे प्रोविंसेस में ट्रांसफ़र किए गए, और इसीलिए इसका नाम डायरकी रखा गया, द्वैध शासन. राइट. So the answer is Government of India Act 1919. Next question is, which of the following act introduced the first time bicameralism, upper house and lower house and direct election in India? So पहली बार कब सेंट्रल में बाईकैमरलिज्म हुआ? अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे आज के दिन में है अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा है, तो वैसे ही पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वाज इट पिट्स इंडिया एक्ट 1892 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? एंड द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. यहाँ पर सेंटर में दो तरह के लोअर हाउस और अपर हाउस की व्यवस्था की गई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Okay, some specific information is there. In 1999 Act also enabled 3 out of 6 members of the Viceroy Executive Council should be Indian. It also extended the separate electoral for Sikh, Indian Christians, Anglo-Indian and European. It granted the limited franchise. जब हम लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर आप इंडियन सिटीजन होते हुए एज आपका 18 प्लस हो गया तो यू हैव राइट टू वोट। और जो ये लिमिटेड फ्रेंचाइज में, इसमें सिर्फ और सिर्फ एज फैक्टर नहीं था, एज के अलावे भी कुछ फैक्टर रखे गए थे, तो इसलिए ये लिमिटेड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द बेसिस ऑफ द लिमिटेड फ्रेंचाइज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लिमिटेड फ्रेंचाइज फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड टू इंडियंस। इंडिया के कुछ ही लोग वोट कर सकते थे, सारे लोग वोट नहीं कर सकते। अगर सारे लोग वोट करते तो उसको एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता। यहाँ पर लिमिटेड फ्रेंचाइज था, मतलब कुछ लिमिटेड लोग वोटिंग कर सकते थे, कुछ बेसिस रखा गया कि कौन वोट कर सकते हैं, कौन वोट नहीं कर सकते हैं। तो उसके कुछ ग्राउंड रखे थे, उसमें से कौन सा ग्राउंड नहीं था, क्वेश्चन ये है। एजुकेशन, प्रॉपर्टी, टैक्स, जेंडर, and obviously the ground was not the gender, but certainly ground for limited franchise was on educational basis, on property basis and on tax basis. Those who are paying tax, only they were eligible for the limited franchise. Those who had some extent of property, only they can go for voting. And those who are educated up to some grade, they can voting. This was the condition in 1919. 1919 में जब लिमिटेड वोटिंग पावर मिला तो उसमें कंडीशन ये था कि इतने कम से कम पढ़े होने चाहिए, इतनी लेवल की प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए और आप गवर्नमेंट को टैक्स पेयर होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं और टैक्स पेयर नहीं हैं, आप वोटिंग नहीं कर सकते। आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप वोटिंग नहीं कर सकते। जो 1919 में जो अंग्रेज, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लिमिटेड फ्रेंचाइजी इंडियन को दिए, उसमें ये कंडीशन थे कि एक पढ़ा लिखा तबका जो जिसके पास प्रॉपर्टी हो और जो टैक्स देता हो, वही लोग वोटिंग कर सकते थे। सारे लोग वोटिंग नहीं कर सकते थे। अगर सारे लोग वोटिंग करते तो उसी को यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी कहा जाता है। यहाँ पर लिमिटेड फ्रेंचाइज है। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ जेंडर वाज नॉट द बेसिस। सो those who have not subscribed, please do subscribe, like, comment and share to your near and dears. We will meet in the next class. Till then, namaskar.